السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. پاکستان اور بھارت کی دشمنی کی ایک تاریخ ہے اور اس دشمنی میں ایک دوسرے کے عام شہریوں کی شاید جانیں لینے کا بھی الزام ایک دوسرے پہ بھرپور انداز سے لگتا رہا ہے. آج سے پہلے جب ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا تو عام طور پہ جہاز سے گرائے ہوئے بم اس بات کی تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ بم شہری آبادی پر گر رہے ہیں یا فوجیوں کے مورچوں پر. اب پاکستان اور بھارت 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، مگر اب بھی جو دونوں ممالک کی دشمنی ہے اس میں جنگ میں عام شہری بھی نشانہ بنتے ہیں. ہم نے کشمیر میں دیکھا جس طریقے سے عام شہریوں کو خاص کر بھارتی فوجیوں کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو آزاد کشمیر اس کے شہری آبادی بالکل لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں. اور کچھ یہی حالات پچھلے دنوں مزید سامنے آئے جب بھارت کا ایک جاسوس کلبھوشن یادیو بلوچستان سے پکڑا گیا اور اس نے برملا انکشافات کیے، اعترافات کیے کہ اس نے کس طریقے سے پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں دہشت گردی کے ذریعے عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا. کچھ دیر پہلے ہی فوجی ترجمان کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بھارتی جاسوس کو، جو کہ بھارت کی نیوی کا ایک افسر تھا، اس کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو کہ جنگ کے دوران ایک کورٹ مارشل فوجی عدالت بنائی جاتی ہیں، اس عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے اور پاکستان کے آرمی چیف نے اس سزائے موت کی تصدیق کر دی ہے. اب اس سزائے موت کی کیا قانونی پروسیس رہا ہے اور آگے قانونی عمل کیا ہوگا اور کن حالات میں یہ سزا سنائی گئی اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان. مگر اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سے بھارتی جاسوسوں کو ٹرائی کیا گیا، بہت سو کو قید کی سزا سنائی گئی اور ان کو رہا بھی کیا گیا. یہی صورتحال بھارت کی جانب بھی ہے. بھارت میں بھی کچھ لوگوں کو پکڑ کے یہ کہا گیا اور دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان کے جاسوس ہیں، جبکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے کبھی بھی سرکاری طور پہ اس چیز کی تصدیق نہیں کی گئی. مگر یہاں کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بھارتی سفارت خانہ اس تک رسائی کی بھی درخواستیں کرتا رہا ہے اور اس سزائے موت کے خبر کے بعد بھارت کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں اس بات پہ یقینی طور پہ احتجاج کیا گیا ہے. پاکستان کے جو سفیر ہیں نیو دہلی کے اندر، وہاں پہ ان کو طلب کیا گیا عبدالباسط کو اور ان سے احتجاج کیا گیا، جبکہ پاکستان کے سفیر نے اس احتجاج کو اسی وقت مسترد بھی کیا اور خبروں کے مطابق بہت سخت الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے بھارت کو یاد دہانی کرائی کہ کلبھوشن یادیو نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کا کھلے عام اعتراف کیا اور جس کی ایک ویڈیو بھی ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. مختصراً پہلے آپ کو سناتے ہیں وہ اعتراف، جو ویڈیو بیان جو کہ پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جس میں کلبھوشن یادیو ایک نیوی کے افسر، بھارت کی نیوی کے افسر جو انکشافات کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in
some activities related to the Baluch liberation movement. इससे ज़्यादा वाज़ेह सबूत भारत की बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इन्वॉल्व होने का शायद कोई भी नहीं हो, और जिस तरीके से तफसीलात फराहम की गई उसकी बुनियाद पे तकरीबन 1 साल पहले ही कुलभूषण जाधव के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कुलभूषण जाधव के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कुछ डोसियर और कुछ फ़ाइलें अक़वाम मुत्तहिदा को भी फराहम की हैं, और पाकिस्तान में जो बड़ी P5 के जो मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान, उनको भी कुलभूषण जाधव के हवाले से मतला किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने जो भारत के जासूसों को सज़ाएँ सुनाई और उनमें से बहुत सौ को रिहा भी किया, उनमें 2 बड़े नाम जो थे सरबजीत सिंह थे, एक जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई, और लाहौर शेखुपुरा में बम धमाकों का सरबजीत सिंह पे इल्ज़ाम था। 14 कीमती जानें उन बम धमाकों में ज़ाया हुई। 1990 में ये धमाके हुए थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उनकी अपील गई थी और वो मुस्तरद कर दी गई थी, और 1991 में भी सुप्रीम कोर्ट ने वो सज़ा बरकरार रखी थी। मगर 2 मई 2013 को जेल के अंदर कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और वो ज़ख्मी हुआ, और फिर 1 हफ्ते के बाद ज़ख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। उसके बाद कश्मीर सिंह, जिसको पाकिस्तान जेल में 35 साल की कैद की सज़ा उन्होंने काटी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कश्मीर सिंह की रिहाई का हुक्म दिया, और भारतीय फ़ौजी ने 1962 से 1966 तक 4 साल काम किया, और फिर माहाना उसको जासूसी के लिए 400 रुपये माहाना दिया जाता था। ये 1962-63 की बात है। और जब 1973 में गिरफ़्तार हुआ कश्मीर सिंह तो रावलपिंडी से, तो उसके बाद 2008 में उसको एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, खैर सगाली के तौर पे जनरल मुशर्रफ के फ़ैसले के बाद रिहा कर दिया गया। और कश्मीर सिंह ने जितने भी अपने एतराफ़ात किए थे, अपनी मज़लूमियत का रोना रो रहा था, तो वहाँ पे भारत में जाके उन सब मज़लूमियत से मुकर गया और अपने आप को उसने हीरो साबित करने की भी कोशिश की। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। आज जिस हवाले से हम बात हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट हशमत हबीब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 40 साल से फ़ौज की अदालतें ख़ासकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मुख्तलिफ़ मुल्ज़मान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। हमें पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने भी हमसे वादा किया कि वो बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, और इस वक्त हमारी कैमरा टीम इस वक्त राना सनाउल्लाह के घर के बाहर मौजूद है, और वो ख़ुद घर में मौजूद नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही वो वापस पहुँच के हमें ज्वाइन भी कर लेंगे। हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम के दौरान टेलीफोन लाइन पे भारतीय सहाफ़ी हैं अनुराधा भसीन, हम उनको भी उनका व्यू पॉइंट भी लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुख्तसरन बता दूँ, चंद जासूस जो कि पाकिस्तान में अपनी कैद पूरी करने के बाद वापस भारत चले गए, उनमें सुरन सिंह 1974 में सियालकोट से पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, 13 साल 7 माह कैद की सज़ा काटी, और 1988 में उसे भी सज़ा पूरी करने पर रिहा कर दिया गया। विनोद सवाहने, 61 साल विनोद सवाहने पेशे के एतबार से एक टैक्सी ड्राइवर है। 1977 में पाकिस्तान में जासूसी के लिए आया, और मार्च 1988 में 11 साल कैद के बाद रिहाई मिली। गौरबख्श राम 1 साल की तरबियत लेने के बाद भारतीय खुफिया इदारों ने उसे 1988 में पाकिस्तान में लॉन्च किया, और 14 साल कैद की सज़ा हुई इसको, और सज़ा मुकम्मल होने पर 2006 में जनरल मुशर्रफ के दौर हुकूमत में इसको रिहा कर दिया गया। फिर डैनियल 1992 से पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी का काम कर रहा था, और 1993 में गिरफ़्तार हुआ, उसे 1997 में रिहा कर दिया गया। रामराज 18 सितंबर 2004 को भारतीय खुफिया एजेंसी ने जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन अगले ही रोज़ पकड़ा गया, और फिर कैद की सज़ा हुई। 6 साल कैद के बाद भारत जाने की पाकिस्तान ने उसको इजाज़त दे दी। फिर तरबियत याफ्ता फ़ोटोग्राफ़र राम प्रकाश 1994 में इसे भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान जासूसी के लिए भिजवाया, और उसको पकड़ा जाने पर 10 साल कैद की सज़ा हुई। 59 साल की उम्र में उसे 7 जुलाई 2008 को रिहा कर दिया गया। तो ये तो कुछ खुशकिस्मत लोग थे जो अपनी कैद की सज़ा पूरी करके जासूसी के इल्ज़ाम में अपने मुल्क को लौट के
मगर कुलभूषण जादेव का मामला कुछ इंतहाई संजीदा भी है। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कितना मुख्तलिफ था कुलभूषण जादेव का ये केस उन जासूसों से जिनको पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था? जी, वो जो आपने जिनका जिक्र किया है वो तो छोटे मामूली थे, ज़्यादा वो उसको आप स्पाई कह सकते हैं, और थोड़ी बहुत उन्होंने कोई सैबोटाज कर दिया, वही था ना, उनको कोई एक एजेंडा नहीं मिला हुआ था। ये तो एक मुख्तलिफ नौइयत का एक बंदा था, और नंबर 1 सर्विंग नेवल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ए कमांडर। रॉ ने उसको सिलेक्ट किया एक ख़ास काम के लिए। अब काम क्या था उसको, व्हाट वाज द टास्क गिवन? आपने जाके अब बलूचिस्तान एज ए प्रोविंस में जाके तखरीबकारी शुरू करनी है, नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, सबवर्जन करनी है, सैबोटाज करना है, और वॉर अगेंस्ट स्टेट जो है ना जारी और सारी करनी है। उसके साथ कराची दूसरा उसको टारगेट मिला, और मकरान कोस्ट जो दोनों को लिंक करता है उसके साथ। तो ये इस मैंडेट के साथ जो है इसने अपना आगाज़ किया, और इसमें इसने बहुत कामयाबी हासिल की। जो इंसर्जेंसी थी बलूचिस्तान में वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट होगी। और आप ये देखें कि वहाँ जो पिछला वक्त जो आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में किस कदर जो है वहाँ पर कत्ल गारत हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई, आपकी गैस पाइपलाइन। और कुलभूषण जादेव के हवाले से बहुत से एतराफ़ात भी उन्होंने किए भी हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन किया अनुराधा बिसेन ने, जो भारतीय सहाफ़ी हैं। अनुराधा, बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। एक जासूस जब जासूसी करने दुश्मन मुल्क में जाता है तो जाहिरी बात है उसे अपनी जान पे खेलना पड़ता है। तो अब भारतीय जो हुकूमत है उसको कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, अब वो पकड़ा गया, उसको सजाए मौत हो गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, और यहाँ पे एक डेथ पेनल्टी की वैसे ही कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पहली चीज ये। दूसरा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इतने ईगो के मसले रहे हैं पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में, डिकेड में, जब से कई सालों से। और इनके जो ये जो आपसी इनकी लड़ाई है, या जो एक प्रोसेस जो इनका बातचीत का नहीं होता है, उसमें कई केसेस में देखा गया है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है, जब आप पकड़ते हैं लोगों को, एक दूसरों के लोगों को, और एक केसेस उन पे थोप देते हैं कि ये स्पाई था, ये फलाना ये एजेंसी का आदमी था, ये उस एजेंसी का आदमी था। उनको एक फेयर ट्रायल नहीं मिलता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो पाकिस्तान की जेल में, या पाकिस्तानी हो हिंदुस्तान की जेल में। ये कई अक्सर केसेस में देखा गया है। तो मेरा ख्याल है ये एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस हो जाता है इस किस्म की केसेस होना, और एक जो प्रिजनर्स को एक्सेस होना चाहिए, काउंसलर एक्सेस, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उनकी कंट्री, डिफरेंट दोनों की कंट्रीज में, उनमें उनको एक होना चाहिए, एक अच्छे बेहतरीन लॉयर का, और एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, और उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। अनुराधा, इमोशंस में आके ये बात नहीं करनी चाहिए। अनुराधा, आपने कहा कि हम एक महज़ब दुनिया में रहते हैं, तो क्या महज़ब दुनिया में फौज के अफसरान दुश्मन मुल्क में जाके आम शहरियों को बम धमाकों का निशाना बनाते हैं, 300-400 जाने लेते हैं? क्या नहीं बनाते और ना बनाना चाहिए। मेरा ख्याल है इस मसले का हल ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की एजेंसियों की को लेकर एक जंग शुरू करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपने अजमल कसाब को इंसाफ दिया? क्या आपने अफजल गुरु को इंसाफ दिया? 100,000 कश्मीरी जो है कत्ल कर दिया, और जो ब्लैक लॉ जो आपने वहाँ जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं, वहाँ कहाँ है आपकी महज़बियत, कहाँ है आपकी सिविलाइजेशन? क्या आप बात करती हैं? क्या आप हमें सिखा रहे हैं? आई एम नॉट, देखिए, नहीं सुनिए, पहली बात तो ये है कि आई डू नॉट रिप्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट, और आप किस तरह से मुझे बोल रहे हैं। मैंने खुद अपने यहाँ हिंदुस्तान में रह के हमने अफजल गुरु की हैंगिंग को अपोज किया, हमने कसाब की हैंगिंग को भी अपोज किया। तो आप मेरे ऊपर नहीं आप ये थोपिए प्लीज।
नहीं, अच्छा लेकिन अनुराधा आप तो death अगर हम यहाँ penalty के- अपोज करते हैं हम वहाँ भी अपोज करते हैं, वी आर नॉट टेकिंग एनी साइड। ठीक है और आप जो गलत बात है वो गलत बात है, हम उसको गलत यहाँ भी बोलेंगे और वहाँ भी मगर बोलेंगे। आप ये माने कि जो हकूक आम सिविलियन शहरियों को हासिल होते हैं जो गलती से दुश्मन मुल्क में चले जाएं, वो हकूक किसी ऐसे सोल्जर को हासिल नहीं है जो जासूसी का एतराफ करे और बम धमाकों का एतराफ करे, आप ये मानती हैं? देखिए, जो कंसेशन अक्सर होते हैं इस किस्म के वो अंडर ड्यूरेस भी हो सकते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी जब तक आपकी ट्रायल में नहीं है, एक फेयर ट्रायल किसी को नहीं मिला है, मेरा ख्याल है इस टू जंप टू सच कंक्लूजन एक बहुत गलत चीज हुई। नहीं, आपकी हुकूमत जो है खुलेआम इसका एतराफ क्यों नहीं कर सकती थी कि हाँ ये हमारा अफसर है और हमसे गलती हुई है? जी हाँ। अगर आप इतना आपको फिक्र है किसी की जान की, तो क्या आप समझती है आपकी हुकूमत को एतराफ करना चाहिए था, तब जाके बात सिविलाइज्ड तरीके से होती? I cannot comment on the merits of the case because मुझे नहीं मालूम जब तक नहीं, मैरिज पे छोड़े, कम से कम इतना कह देते कि हमारे अफसर हैं। नहीं, मैं बात करूंगी प्रिजनर्स के हवाले से कि प्रिजनर्स यहाँ पे जो इंडियन साइड से पाकिस्तानी प्रिजनर्स होते हैं और पाकिस्तान में जो इंडियन प्रिजनर्स होते हैं उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलता। और जब तक ये चीज इस चीज का हल नहीं होगा, हम किसी भी ऐसे ट्रायल को हम एक क्रेडिबल नहीं समझ सकते। अनुराधा और दोनों साइड पे ये मबनी होता है। चलें ठीक है, आप फेयर ट्रायल की बात कर रही हैं। एडवोकेट हशमत हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, चाहे फौज भारत की है या पाकिस्तान की, दोनों फौज का कानून तकरीबन एक ही है, अंग्रेजों वाला आर्मी एक्ट उनका भी है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वहाँ पे भी किए जाते हैं फौजियों के, तो वहाँ पे भी जो प्रोसेस होता है हमारा भी वही प्रोसेस है। तो क्या ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल क्या है? देखिए, और ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है ना 4 किस्म की अदालतें हैं, उनमें से एक अदालत की शक्ल है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जिसे उर्फ आम में कहते हैं ये कोर्ट मार्शल हो गया। ठीक है। ये जो भारतीय जासूस पकड़ा गया है एलिगेशन में, इस पर जो ना फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मुकदमा चलाया गया है। अच्छा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है ना, अगर पूरा आर्मी एक्ट पढ़ा जाए ना, वो हमारे सिविलियन लॉ जो है ना उससे बेहतर है टू प्रोवाइड दी फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, जब आर्टिकल 10A के जरिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। लेकिन मामला ये है कि जब एक सिविलियन वहाँ ट्राई किया जाता है तो वहाँ फिर रिजर्वेशन आ जाती है। मिलिट्री वाला ट्राई किया जाता है, फिर कोई रिजर्वेशन नहीं है, बेहतरीन लॉ है उनके लिए। सोल्जर वो तो जंग में भी मारे जाते हैं, मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अब ये जो जासूसी का पकड़ा गया ना, तो अब तक की हिस्ट्री यही है कि जो बंदा जासूसी पकड़ा जाता है वो ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, उसके पीछे पूरी इंटेलिजेंस होती है, पूरी शहादतें होती हैं। शहादतें होने के बाद उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इस हद तक जाती है कि हम देखते हैं कि बंदा इस काबिल नहीं रहता कि दोबारा सर्वाइव कर सके। लेकिन ये जो मैटर है ना, ख़ास तौर पर इसने जिसने तोते की तरह बातें बताई हैं उसको आप 90%, 50%, 80% करेक्ट समझें तो इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन का केस था। इसमें और बहुत सारे जो है ना जाविये निकलते, बहुत सारी शाखें निकलती, इसलिए जो इसका कोर्ट मार्शल करके मैं समझता हूँ कि एक हाथ में हुआ एक ऐसा बंदा जिससे मज़ीद इंकशाफात हो सकते थे। हो सकता है अनर्थ होता है पूरे कराची का मामला, हो सकता है फर्दर अनर्थ होता है बलूचिस्तान का मामला, इसको सज़ा तो कभी भी दी जा सकती है ड्यू प्रोसेस है। और हो सकता है अनर्थ हुआ भी हो, नहीं मालूमात पब्लिक में नहीं होती। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए, ये आप तो क्या कह रहे हैं आप भाई, आप मेरी भाई जब मैं बोल रहा हूं, अभी सुराय मौत पे अमल तो नहीं हुआ ना एडवोकेट साहब, मेरी बात अभी तो है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ पूरी सुन लें आप। अब इसको ट्रायल किया गया, इसको सजा मौत दी गई, ये पूरा ट्रायल करने के बाद। अभी अपील क्या है? अभी अपील 133A में जो है ना, अपील जो है ना मैंडेटरी है, वो अपील 40 डेज में दाखिल की जाती है। किसके पास? ये वहीं पर कोर्ट ऑफ अपील कराती है, वो उसी हरकी में। लेकिन जो फौज के तर्जुमान ने बयान जारी किया उसके मुताबिक तो आर्मी चीफ ने तस्दीक कर दिया। नहीं, ऐसा है जब ट्रायल को ट्रायल करके फैसला करती है ना, जब तक कंफर्म ना हो, इट इज़ कंफर्म बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो
या जिस तब लेवल तक अपील नहीं हो सकती। नहीं, उस वक्त अपील नहीं हो सकती ना। अपील का टाइम ही जब शुरू होता है जब कंफर्म हो जाता है। अब ये 40 डेज में अपील कर सकता है। अब अपील में क्या पॉइंट रेज करते हो आपको सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके साथ कुछ ज्यादती हुई है, क्योंकि ये बहुत ही वाइडली पब्लिश मैटर था, दो गवर्नमेंट के दरमियान था, ऑलरेडी यूएन पहुंचे, हर चीज़ उन्होंने मुकम्मल की होगी, एतराफ़ी बयान भी लीगलाइज किया होगा। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगी ना अपील के बाद, वो आती है जैसे आम शहरी को अवेलेबल है कि वो आईनी कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में चले जाएं। हाई कोर्ट जैसे फिर साहब आप ये बताएं कि जासूस तो दोनों तरफ से होते रहे हैं। प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस तिरमिज़ी की बुक है, तफसीलन उन्होंने बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, और ये बड़े प्राइड की बात होती है प्रोफेशनल आर्मी के लिए कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो दुश्मन की सफ़ों में जाके रूप बदल कर वो मालूमात हासिल करती है और वो नुकसान पहुँचाती है कि जिससे अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। और ये सिर्फ एक जासूस की बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान और भारत जो है कुछ एक्सचेंज ऑफ स्पाइस हो सकता है, या ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे अगर कोई लोग उनके पास हैं तो वो हमारे हवाले किए जाएं, या ये मामला ऐसा है कि ये तो एक दहशत गर्दों को सपोर्ट करता रहा है जो कि शायद प्रोफेशनल जो अखलाकियात होती हैं किसी भी सिपाही की या फौज की, वो आम शहरियों को निशाना बनाना नहीं बनाना, उनको भी इसने पामाल किया। तो ये केस डिफरेंट है आम जासूसों से। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको पहले जैसे बताया कि स्पाइंग जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। स्पाइंग तो है इंफॉर्मेशन हासिल करना और दुश्मन की फौज को नुकसान पहुंचाना। जी हाँ, मतलब शहरियों को नहीं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन ही लानी है ना जी। आपने इंटेलिजेंस लानी है, चाहे वो वॉर टाइम है या पीस टाइम है, दोनों टाइम में चलती है, पीस टाइम में भी वॉर टाइम में भी, ठीक है ना जी। किस नौयत की इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है। एम्बेसियाँ क्या करती हैं? स्पाइंग ही करती है ना। हर एक एम्बेसी जो है ना यही काम कर रही है, उनका ये भी एक काम होता है सीक्रेटली, इट्स एन ओपन सीक्रेट, उसमें कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है 9/11 के बाद बनी, एक 1971 में बनी, वो छोटी थी, ये 10 गुना बड़ी बनी। और उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में इंडिया का एक कलीदी रोल, फ्रंट लाइन रोल था इसका, और उसमें ये जो है ना कुलभूषण जाधव जो है वो फिट इन होता है। और उन्होंने क्या करना था? डिस्टेबलाइजेशन, डीन्यूक्लियराइजेशन एंड देन बाल्कनाइजेशन। राजनाथ क्या कहता है? 10 टुकड़ों में पाकिस्तान को काट दूंगा। अभी सुब्रमण्यम ने क्या किया? 4 टुकड़ों में करूंगा। जो आपका उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जो वहाँ ढाका में जो बात करके आया, उसने साफ कह दिया कि जी हमने किया। अब क्या कह रहा है कि जी बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में ये लोग हमारे साथ हैं, मतलब इनको भी हम क्या कर रहे हैं, उधर बरकला रहे हैं। तो आपके ख्याल में इसके ऊपर भारत से कोई लेन देन नहीं? नॉट एट ऑल। इंडिया इज नॉट आवर फ्रेंड, इट इज आवर एनिमी नंबर 1। वो कभी हमें पाकिस्तान को उसने तस्लीम नहीं किया, वो हमेशा हमें नुकसान अच्छा, अब पहुंचाएगा। एक आम आदमी के जहन में सवाल आता है कि जैसा हमने भारत का एक जासूस पकड़ा है, क्या भारत के पास पाकिस्तान के कोई ऐसे लोग हैं जासूस हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी ये जो एक केस जो हुआ है वो कर्नल साहब को जो उधर पकड़ लिया नेपाल से, ये कर्नल हबीब ताहिर हैं, उसका अब ये नेपाल से अगवा हुए हैं, अगवा हुआ नेपाल है। से। और ये इनको पता था कि जी अब फैसला आने वाला है, क्योंकि जब FIR दर्ज हो गई, जब इसकी मदद से जो 400 बंदे हमने यहाँ से पकड़े, कराची से, बलूचिस्तान से, और उनमें से फिर 30 जो थे वो इसी ने ही बताया कि जी ये मेरे फैसिलिटेटर से तो इंडिया में। अब आप ये कह रहे हैं कुछ दिनों में हमें भारत से खबर आएगी कि किसी बहुत बड़े वाक़े में एक पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अफसर को पेश कर दिया जाएगा। कुछ अभी आप समझ रहे हैं इस तरह की कोई वाक़या? इंडिया तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का माहिर है, वो तो सारी उसकी चंकियन टैक्टिक्स है ही यही है, ऐसा ना तकरीबकारी लाइंग। ये तो लाइंग नहीं है, ये तो वीडियो आपने अभी क्लिप दिखा दिया, वो क्या कह रहा है। उसने तो नॉट गिल्टी भी नहीं ऑप्शन लिया, उसने तो पहले दिन से ही गिल्टी लिया, इसीलिए आराम से केस हो गया। ये अपील क्या करेगा? अब यही कहेगा कि मुझे सजाए मौत ना दो, मुझे उम्र कैद दे दो, यही कहेगा ना। और वैसे क्या ये हकीकत नहीं है कि जब जासूस पकड़ा जाए तो वो तो गोली का मुंतजर होता है, वो तो किसी अदालत का भी उसे तवक्को नहीं होती, और ऐसे ही होता रहा है। तो ऐसे ही होता रहा है, तो अब क्यों अदालत के प्रोसेस से इसको गुजारा गया?
वो इसीलिए कि अब ये अनाउंस हो गया, उधर बलूचिस्तान में ये पकड़ लिया और उसके बाद फिर इसको दुनिया को भी बताना नहीं, बताना भी था और फिर हमने मालूम करना था। ये तो एक बंदा था, उसके आगे जो हमने 400 बंदा और फिर जो बलूचिस्तान में जो नेटवर्क तोड़ा है, उसकी वजह ये है कि आज वहाँ पर कमर तोड़ दी है हमने वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। अब वहाँ पर जो एक कैजुअल्टी फिगर है और जो वारदातें हैं बहुत कम हो गई, ये इसी की यही वजह है। एडवोकेट हशमत हबीब साहब, बैनुल-अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं कैदियों के हवाले से, और जासूस पकड़ा जाए तो उसके हवाले से क्या इन जासूसों के भी कोई राइट्स होते हैं? नहीं, हर कैदी का राइट होता है, ये चाहे वो जासूस है, कोई भी हो, कोई भी हो, जब तक बंदा गिरफ्तार साबित न हो जाए कि जो मुजरिम है वो मुलजिम ही कहलाता है। तो इसमें तो एतराफ़ है। और नहीं, एतराफ़ तो सारे हैं ना, मैं नहीं कहता कि एतराफ़ नहीं है, एतराफ़ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये फॉलो नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ ये खबरें मैं सुनी ना मैं कहता हूँ 50% भी एतराफ़ उसका दुरुस्त है, तब भी ये इतना बड़ा एतराफ़ है कि जिससे पूरे का पूरा हौलनाक मंजर सामने आता है। तो उसकी जो है ना इन डेप्थ तफ्तीश होनी चाहिए। नहीं देखिए, वो हमें तो नहीं बताएंगे ना, हो नहीं सकता है वही हो। नहीं, मैं ये हमें तो थोड़ी सी मालूमात दी गई है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं कहता बिल्कुल ही होगी, जिम्मेदार अदारे हैं, लाजमी किया करेंगे। लेकिन जब पहले ही होता था कोई आदमी पकड़ा जाता था ना स्पाइंग में, स्पाइंग पहले क्या होती थी, कोई ममनूआ इलाके में घूमता है वहाँ पकड़ गया, किसी ने सरहद को पार किया वो पकड़ा गया, उनका नहीं पता, मछीरे जो पकड़े उनसे अच्छा उन्हीं का नहीं पता लगता। तफ्तीश की राना सनाउल्लाह साहब हमें राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमें टेलीफोन लाइन पे हमारे प्रोड्यूसर अगर राना सनाउल्लाह साहब को भी ले लें तो आप काइंडली उनसे राब्ता कर लें। तो मैं एडवोकेट हशमत हबीब साहब, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आप देखें ना, जंगें तो बहुत हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस दौरान फ़ौजी भी पकड़े जाते हैं, कैदी भी बना लिए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या भारत में भी फौजी अदालत में नहीं मुकदमे सुने जाते हैं? अगर सुने जाते हैं, नहीं, ये मुल्क का कानून ऐसा है फौजी अदालत जिसमें सब्जेक्शन क्लास लगा के ना जो भी आदमी इन्वॉल्व है उसको ट्राई किया जा सकता है। कोई ये नई जो अदालतें बने ना उसके से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले सिस्टम में हर चीज मौजूद है। अब ये मामला जो है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हमारा है ना पाकिस्तान आर्मी एक्ट और रूल्स में जो है ना वो बिल्कुल फेयर ट्रायल का मंजर दिया गया है, बल्कि वही चीज़ें हैं जो आप आर्टिकल 10 में आपको मिलती हैं, 12 में मिलती, सब मिलती है। ये कैदी के लिए भी है, चाहे वो जासूस है, चाहे पाकिस्तानी है या नहीं। आर्मी में तो ये करते हैं कि जब पेश करते हैं ना अदालत में, उसका बाकायदा डॉक्टर सर्टिफाई करता है ये फिट है टू स्टैंड फॉर ट्रायल, ये नहीं है। तो इनका वकील कौन था? क्योंकि इनके एम्बेसी ने इनके रसाई हासिल करने के लिए मांगी लेकिन उनको नहीं दी गई, तो क्या मिलनी चाहिए थी? रसाई हासिल करना तो वो है ना एक स्टेट से मामला है। ये इस आदमी को हक है अपनी मर्जी का वकील करने का। अच्छा। यकीनन उसके हक को इस्तेमाल किया होगा। कौन वकील बना होगा? कोई भी हो सकता है, मुझे तो अप्रोच नहीं किया। अच्छा, हाँ, मतलब कोई फौजी अफसर भी वकील बन जाता है? नहीं, सब कैसे होता है? मैं बता रहा हूँ भाई, होता ये है कि अगर आप एडवोकेट नहीं कर सकते ना, तो जो आपको कन्वीन करते हैं ना कोर्ट कन्वीन, उसको ये इख्तियार है कि अपने किसी बंदे को, ऐसे बंदे को जो लॉ नोइंगे, उसको वकील कर देता मतलब है। एक फौजी अफसर जो है हो सकता उसको मुतय्यन कर दिया जाए कि आप इस जासूस को दिफा करेंगे। हाँ, वो भी करेगा, उसके जो एविडेंस। अच्छा, वो कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे कितना पाबंद है कि वो जेन्युइन दिफा करे इसका? नहीं, हर आदमी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सही बंदा है, अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज। तो क्या जो डिफेंडिंग अफसर होता है वो वाकई मेरा अपना तजर्बा ये है कि जितने केसेस में डिफेंडिंग अफसर मेरे क्लाइंट को मिले, सारे 2 नंबर ही मिले, उनको कुछ पता नहीं होता है। वो इनफैक्ट आपके क्लाइंट ज्यादातर वो जो मशकूक मुल्ज़मान या दहशतगर्दी में मुलव्वस? नहीं, मेरे सारे जितने क्लाइंट रहे हैं अब तक, सबके बारे में यही तासर भेजा हमेशा कि ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। इनफैक्ट उनकी वकील आपका जॉब है उनको डिफेंड करना। नहीं, ये गलत, वकील के बारे में तासर गलत है। वी डोंट डिफेंड ए क्लाइंट, हम ये असिस्ट करते हैं अदालत को ताकि इंसाफ हो सके। हमारा, हम अगर मुजरिम है तो मुजरिम को ये नहीं कहते मुजरिम ये नहीं है। अब अगर मुजरिम एक ऐसा है जिसके बारे में खुद कोर्ट कहती है जी आप हमारे पास आए क्यों, जब आए तो आपने कुछ किया है, जब ये एटीट्यूड कोर्ट का होगा तो फिर क्या करेंगे आप? लेकिन ये आम कोर्टों की बात है, ये जो जासूस वाले मामले में नहीं है। जासूस वाला मामला डिफरेंट है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम बात करें कुलभूषण जाधव को दी गई फौजी FGCM की तरफ से सनाउल्लाह हमारा टेलीफोन उठा लें और उनसे भी हम कुछ मौक़िफ़ हासिल करेंगे और हम बराह रास्त उनसे रब्ता करने की
कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये प्रोसेस क्या है, मतलब कि एक जासूस यकीनी तौर पे भारत के अंदर भी फ़ौज के वही कवानीन हैं जो यहाँ पे कवानीन हैं, उसको उस जासूस का दिफा करने के लिए भी कोई ना कोई वकील तो लगाए। मैं बताऊं आपको, स्पेशल मिलिट्री कोड जो है ना, जब मार्शल लग जाता है ना, उस दौर में अदालतें बनती है स्पेशल मिलिट्री कोड, उसमें सारा प्रोसेस अवेलेबल होता है, डिफेंस काउंसिल भी होता है, दूसरी साइड का वकील भी होता है, साथ सेशन जज भी बैठता है। नहीं, उसमें ऐसा होता सिविल जज होता है, नहीं, सिविल जज नहीं होता, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता मजिस्ट्रेट है, होता है। एक मेजर होता है, एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, या कोई बड़े ओहदे का होता है, ये होता है। वहाँ सारा प्रोसेस चलता है, हर चीज़ पूरा स्टेज होता है। रिजल्ट क्या निकलता है वो इनको पता होगा। रिजल्ट वो फिर जो अभी जैसे मेरे होते थे ना, वो जाते थे डीएमएल हेडक्वार्टर, डिव हेडक्वार्टर, वहाँ का जो जज है वो वेट करता था, फिर कोर हेडक्वार्टर, फिर जीएचक्यू। अच्छा, तीनों प्रोसेस जो है वो पूरी लॉ के देखते हैं कि कोई इसमें जो है ना गलती। ब्रिगेडियर साहब, हम फौजी अदालतों से जरा हटके जी अब एज अ सोल्जर, एज अ आर्मी मैन, एक उसकी ड्यूटी लगी कि आपने दुश्मन मुल्क में जाके जासूसी करनी है, तो एज आर्मी मैन तो आप हर वो काम करेंगे जिसका आपको हुक्म दिया गया। बल्कि मैं राना सनाउल्लाह साहब भी अभी हमारे साथ टेलीफोन हमें कर रहे हैं, मैं राना सनाउल्लाह साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं, और अगर काइंडली हमारे लैंडलाइन से राना सनाउल्लाह साहब आप हमारी फ़ोन उठा लें, लैंडलाइन से आपको रब्ता कर रहे हैं और हम इस वक्त लाइव हैं। बहुत शुक्रिया। तो राना सनाउल्लाह साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं। वही जल्दी से बता दें कि सोल्जर जिसको हुक्म दिया गया है कि आपने ये कार्रवाई करनी है, अगर वो पकड़ा जाता है दुश्मन की साइड पे, तो क्या उसका जो कंट्री है उसको क्या रूल्स ऑफ द गेम्स क्या होते हैं, उसे डिसऑन कर देते हैं? देखें जी, मुझे पता है कि पाकिस्तान की तारीख में ना होगा ना हुआ है कि किसी एक फौजी या एयरफोर्स का या नेवी के ऑफिसर को इस तरह का काम, और आप ये देखेंगे इंडिया में ये शोर कितना मचेगा। आप ये कह रहे हैं आज वो कहना शुरू कर दिया है उन्होंने, मतलब ये एक सर्विस ऑफिसर जो कि 2022 में जाके रिटायर हो रहा है, ठीक है, उसको जो है ना 2003 से इन्होंने इस्तेमाल में लाए हुए हैं। चलें ठीक है। एक छोटे राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप बहुत देर की मेहरबान आते आते आपने बहुत पहले का वादा किया था, बट एनीवे अब आप पकड़े ही गए। तो अब ये बताएं कि कुलभूषण जाधव के हवाले से बार बार ये कहा जाता था कि जनाब नवाज शरीफ साहब कोई बात नहीं करते, उन्होंने यूएन में जो तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, वहां पे कुलभूषण जाधव का जो है जिक्र नहीं किया। अब जबकि सजाए मौत सुना दी है हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमत की तरफ से, तो अब आगे इसका क्या होगा? आप समझते हैं कि वो सारे सियासी इल्जामात जो हैं वो गलत साबित हो गए, या अभी भी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया और फौजी तर्जमान की तरफ से बयान आ रहा है? देखें मतीउल्लाह जान साहब, ये बस हर आदमी जो है वो अपने यानी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और दूसरों को जो है वो यानी उस हद तक हिट करने की कोशिश करता है जो मैं समझता हूँ कि कोई यानी मुनासिब या कोई जो है वो असूल की बात नहीं है। देखिए, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक जो है वो जासूस है जो उसके ऊपर जो है वो तकरीर करे, उसके ऊपर जो है वो यानी बयान दे? मैं समझता हूँ कि जिस लेवल के ऊपर उसका बयान होना चाहिए था, जिस लेवल के ऊपर उसकी जो है वो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, वो सारा कुछ हो रहा था, हुआ है। और जो सज़ा उसे मिलिट्री कोर्ट से या कोर्ट मार्शल के नतीजे में मिली है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल कानून के मुताबिक है। और जिस आदमी ने इस बात का इतराफ़ जुर्म किया हो कि वो न सिर्फ दूसरे मुल्क के लिए जासूसी करता था, बल्कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो जो है वो शरीक रहा है, तो इसमें जो है ये कोई इस किस्म की बात करना जो है, मैं नहीं समझता कि जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो लोगों को अपने लिए इज्जत या को अपने लिए जो है वो बहुत जो है वो अपने आप को मुहिब्बे वतन जो है वो साबित करते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुहिब्बुल वतनी के जज्बे को और अपने वतन को जो है वो जो इस तरह से जो है वो अपने ज़ाती और घटिया मकासद के लिए जो है वो ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना जो है ये इंतहाई नामुनासिब है। राना साहब, आपको याद होगा वो भी एक धरने का भी माहौल था, और कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद फिर कुछ ताने बाने जो हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब का भी दौर था, जोड़े गए कुछ शुगर फैक्ट्रियों से जिनके शरीफ फैमिली मालिक थी,
اور شوگر فیکٹریوں میں بھی جو کچھ ملازم تھے ان کا بھی کہا گیا تھا کہ بھارت سے وہ آئے ہوئے ہیں. کچھ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے وہ سب کیا ہوا؟ نہیں تو کیا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ جو یعنی یہ شوگر فیکٹری جو ہیں جہاں پہ وہ جو ایک وہ خاص طور پہ جو وہ جنریٹرز کوئی استعمال ہوتے ہیں، تو سم تھنگ اس ٹائپ کی جو مشینری ہے وہ تمام شوگر ملز میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ سوٹ کرتی ہے، کاسٹ اس کی کم ہے، اور وہ تقریباً تمام جو ہے وہ شوگر ملز میں استعمال ہوتی ہے. وہ جہانگیر ترین کی شوگر ملز میں بھی وہی جو ہے وہ سلسلہ ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ انڈین انجینئر یا وہ جو سلکا کاریگر ہیں وہ آتے رہے ہیں. یہ تو اسی وقت یہ ساری چیز جو ہے یہ سامنے آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو لوگ اس کے اوپر بڑی بلند و بانگ گفتگو کرتے تھے انہوں نے پھر خاموشی اختیار کر لی تھی. یعنی یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم ہر بات کو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو نہیں پتہ چلے گا، اور ہم جو کہہ دیں گے جس طرح سے کہہ دیں گے اسی طرح سے لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. مگر کوئی ایسی جدید مشینری تھی جس کے لیے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ان مشینری چلانے کے لیے؟ اس میں اب مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ میں اس یعنی جو وہ جنریٹر یا جو بھی چیز ہے اس کا میں نام نہیں لے پا رہا. اس کے متعلق یہ اس وقت یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آئی تھی کہ دنیا میں انڈیا کی جو ہے وہ اس کی کم کاسٹ ہے، کارکردگی بہتر ہے، جبکہ اس کے مقابلے جرمن جو ہے وہ شاید کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کاسٹلی ہے. اور شوگر انڈسٹری میں آلموسٹ ہر جگہ پہ یا زیادہ جگہ پہ اس کا استعمال ہے، اور اس میں دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. اور ویسے بھی ان کی سیکیورٹی کلیئرنس تو ہوئی ہوگی ساروں کی. جی بالکل، سب کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. سیکیورٹی کلیئرنس بھی جو ہے کوئی عام لوگ تو نہیں کرتے، بڑے بڑے خفیہ ادارے کرتے ہیں. جی بالکل، جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ ادارے کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، اب یہ بتا دیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہلے سے ہی کافی کشیدہ ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جاسوس کو پھانسی دے دینے سے انصاف ہو جائے گا اور دہشت گردی میں کمی واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سزا کا تعلق ہے وہ تو مجرم کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن تعلقات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات، اور خاص طور پہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ جنگ کے ساتھ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی حل اس نے ہونا ہے، اور دونوں ممالک کو کرنا پڑے گا. پاکستان اس اہمیت سے پوری طرح سے آگاہ ہے، اور اس بارے میں جو میاں نواز شریف نے کوششیں بھی کی، ان کوششوں کو کچھ یہاں پہ ہمارے جو یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو جو ہے وہ ادروائز انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس قسم کے جو ہاکس ہیں وہ وہاں میڈیا میں بھی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کہ ایٹمی قوت ہیں، جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. اور ان دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے بڑی آسانی سے برداشت کر سکے. اس لیے مذاکرات ہی وہ راستہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اظہار رائے کی جو ہے وہ آزادی دی جائے، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ بہتر تعلقات کی جو ہے وہ بنیاد رکھیں. اگر بھارت جو ہے کلبھوشن یادیو کے لیے کوئی ریلیف مانگتا ہے پاکستان سے، اور اس کو ایک شرط کے طور پہ سامنے رکھتا ہے مذاکرات کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رد عمل ہونا چاہیے ہماری حکومت کا؟ نہیں دیکھیں، اگر ایک مجرم کے جرم جو کہ اس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، جس کو وہ خود تسلیم کرتا ہے، اس کی شرط کے اوپر جو ہے وہ کیا مذاکرات یا کس بات کی جو ہے وہ ریلیف یا آفر کرتا ہے؟ کیا بھارت یہ کہتا ہے کہ جی میں کشمیر کی آزادی کے اوپر جو ہے وہ میننگ فل ڈائلاگ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار ہوں، اور آپ جو ہے اس جاسوس کو جو ہے وہ
پھانسی نہ دیں یا اس کو آپ ریلیز کر دیں. کیا وہ یہ شرط پیش کرتا ہے؟ اب یہ جب تک کوئی شرط سامنے نہ آئے تو اس وقت تک تو ہے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی مفروضہ قائم کر کے جو ہے وہ رائے دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے. اچھا رانا صاحب، سربجیت سنگھ بھی ایک بھارت کا جاسوس تھا جو کہ تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ پاکستانی جیل میں رہا، اور پھر مئی 2013 میں جیل کے اندر کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا اور یہ بڑی خبریں بھی آئی تھی. وہ زخمی ہوا اور پھر وہ جان سے گیا. اس کا کوئی فالو اپ کچھ اپڈیٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ بہرحال اس واقعے کی جو ہے وہ کوئی ایز سچ جو ہے وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال ایک آدمی جو جیل میں قید ہو اور بھلے وہ سزائے موت کا ہی کیوں نہ جو ہے وہ قیدی ہو، اس کو بھی بذریعہ تشدد ہلاک کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے قانون میں. ٹھیک، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون پنجاب سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب، میں بلکہ ایڈوکیٹ صاحب آپ سے میں اب جاننا چاہوں گا کہ اب اپیل کے لیے یا بھارت کی حکومت کے لیے قانونی راستے کیا ہیں؟ میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ بھارتی حکومت تو اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرے گی، اون نہیں کرے گی. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں، لیکن آفیشلی وہ شاید نہیں وہ نہیں کریں گے. وہ یہ نہیں مان رہے کہ وہ جو نا سرونگ ہے، وہ نہیں مان رہے کہ وہ را کے ساتھ، وہ نہیں مان رہے کہ وہ سیبوٹاج نہیں. وہ ایز اے سٹیزن بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، پرائیویٹلی اس کو لے کے جائیں گے لوگ. کیسے؟ وہ ان کے کونسل، ان کے سفارتخانے نے رسائی تو مانگی نہیں. رسائی مانگنا اور بات ہے، پرائیویٹلی اس کی باپ ہوگا، ماں ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کوئی رشتہ دار ہوگی، آپ اس کے دوست ہوں گے، یہ دوست ہوگا، کوئی اور ہوگا، کوئی جا کر سکتا ہے اس میں کیا. تو آپ کے خیال میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایسے یہ ہے نا آسمہ جہانگیر ہے، وہ آ جائے گی بھاگ کے. نہیں، لیکن آسمہ جہانگیر کا ایز اے لائر تو آپ خود کا ہے کہ اس کا کام ہے لائر کا ڈیفینڈ کرنا. دیکھیں ڈیو پروسیس کو پروموٹ کرنا. لائر کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جو وارداتی ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ پریکٹیکل یہی ہوتا ہے. آپ تو اتنے سینئر وکیل ہیں، اب اس دہشت گرد کو چھوڑیں یا جاسوس کو آپ کیسے دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ کوئی وارداتی ہے یا نہیں ہے؟ مشرف کے دونوں کیس جو ہے نا ٹرائل میں نے کیے ہیں، دونوں ہی بے گناہ تھے. انہوں نے ایک کہانی بنائی، اس میں بندوں کو فٹ کر دیا، جو پہلے سے گرفتار تھے ان کو فٹ کر دیا. خیر دیکھیں، لائر میں وکیل صاحب لائر فیس لے کے ڈیو پروسیس کو فیس کرتا ہے. دیکھیں فیس الگ بات تو نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے. یہ لائر کی ڈیوٹی ہے، فیس لے کے آپ کلائنٹ کو ڈیفینڈ کریں تاکہ کورٹ کا ڈیو پروسیس ہو. میں فیس لیتا ہوں بہت زیادہ، یہ نہیں کہ میں فری کرتا ہوں، میں بہت سارا کام فری بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں جتنے جرنلسٹ ہیں آپ کے پاکستان، جتنے فنکار سب کے کام فری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کرتے، میرے ماموزاد بھائی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ منہ دیکھ کے تو نہیں کہہ سکتے یہ وارداتی ہے یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وارداتی ہم نہیں لیتے، ہر ایک کا لینا چاہیے. بھائی بات سنیں، ڈیو پروسیس ہے. نہیں لینا ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہ آئین میں آپ نے رائٹ دیا ہوا ہے. نہیں، رائٹ ہے، آپ کی مرضی، آپ لے نہ لیں. اگر آپ کیس آپ لے لیں نا، پھر آپ کی ایک امپلائی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو فیسلٹی دلائیں. آپ ٹھیک ہے. فیسلٹی میں یہ نہیں کہ اس بری کرائیں، فیسلٹی یہ کہ اس کو انصاف کرائیں، سزا جتنا اس نے جرم کیا اس حد تک اس کی سزا کو رکھیں، اس کے جو رائٹس جو ہیں ایز اے قیدی وہ سارے پروٹیکٹ کریں. بغیر صاحب، کیا ایک کلبھوشن یادیو ہے پاکستان، اور اگر یہ ایک پکڑا گیا تو اس کے بعد تو ہم نے کوئی خبر نہیں سنی، بس ایک ہی تھا یا اور بھی ہیں؟ نہیں، اور بھی ضرور ہوں گے. کیوں نہیں پکڑے جا رہے وہ؟ یہی ایک دیکھیں، ابھی یہ رد الفساد کیا کر رہا ہے، یہ نیٹ ورک ہی پکڑ رہا ہے نا جی. اور اس طرح وہ جاری ہے، ساری ہے، لوگوں نے ساری ان کی جو بیسس تھے وہ جڑ سے اکاڑ کے ادھر افغانستان میں چلے گئے. اب یہاں یہ نیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا قصہ شروع ہے. ہر روز آپ سن رہے ہیں کہ ہتھیار بھی پکڑے جا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں، ہینڈلرز بھی ہیں اور ٹیررسٹ بھی ہیں، وہ پکڑ رہے ہیں. یہ پروسیس جاری رہے گا. ایک سال میں آپ دیکھیں کہ کتنی ہوتی ہے. آفٹر آل 80% تک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو یہ ریمیننگ 15-20% یہ بھی انشاءاللہ ایک سال تک اب دیکھیں گے بڑا پروگریس ہو جائے گی. یہی تو سب سے زیادہ غم ہے اس وقت انڈیا کو. یہ کیوں اس وقت اتنا پریشان ہے کہ اس نے جو اتنے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو اس نے کووڈ وار کے اوپر جو خرچ کیا ہے وہ تو سارا اس کا فیل ہو گیا، بیک فائر کر گیا. جتنے اس نے کانفلکٹ زون کریٹ کیے تھے وہ تو سارے اس وقت جو ہے ٹھنڈے ہو گئے. کراچی کیا تو بلوچستان کیا تو فاٹا کیا، اور قصہ مختلف ہو گیا. پاکستان اب اسٹرینگتھن ہو گیا ہے، سی پیک چل پڑا ہے، نیوکلیر پروگرام آپ کا اسی طرح فعال ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا کلبھوشن یادیو کو بھارت کے ساتھ بارگیننگ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں، 100% نہیں. بارگیننگ اور ود انڈیا
सवाल ही पैदा नहीं। ये जो बात कर रहे हैं ना जी कि बातचीत करनी, 70 साल से हम इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं? बातचीत, ठीक है, नहीं मीनिंगलेस बातचीत, ठीक। नथिंग, उधर मर तो रहे फिर हैं अब क्या कभी करें? हर रोज। फिर क्या करें? उनके साथ ये है ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करें, फिर बात करें, वो खुद आएंगे आपके पास। बहुत और वो शुक्रिया। कश्मीर वाले वो कर रहे हैं बहुत आपके लिए। शुक्रिया ब्रिगेडियर आसिफ हारून, एडवोकेट हशमत हबीब, हमें राना सनाउल्लाह ने भी जान किया। भारत की सीनियर सहाफ़ी अनुराधा ने भी। जासूसी एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है, मगर जब ये प्रोफेशन आम शहरियों की जान लेने पर तुल जाए तो यकीनी तौर पे वो प्रोफेशन नहीं रहता, वो दहशत गर्दी में बदल जाता है। और किसी भी मुल्क में दहशत गर्दी को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक शख्स की जान है एक तरफ तो उसने अगर 300-400